Hi everyone, good morning. Well, this is Sarfraz Khan and I welcome you all in my YouTube channel that is Crow Skills Academy. So once again, I've come with a new video that is Current Affairs of 24th May 2025 of UPSC RRB NTPC एग्जामिनेशन। आपकी जो RRB NTPC एग्जामिनेशन अभी नजदीक है, उसके लिए ये आज का जो क्लास है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरा आज की क्लास में आप बने रहे। 10 क्वेश्चंस होंगे आपके सामने। देयर विल बी 10 क्वेश्चंस and each questions will have 4 options and you will be given 5 seconds to answer, right? तो चलिए शुरू करें हम लोग अपने क्लास को आज। Let's get started, right? The first question on the screen here we have is, which Indian author has recently won the International Booker Prize 2025? हाल ही में किस भारतीय लेखक ने इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? ऑप्शन ए गीता आनंद, ऑप्शन बी बनु मुश्ताक, ऑप्शन सी अर्पित घोष एंड ऑप्शन डी मेघना पंत। तो इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स जवाब देने के लिए। वेल यू हैव बीन गिवन 5 seconds to answer. So which Indian author has recently won the International Booker Prize 2025? Well, the correct answer is option B, Banu Mushtaq, right? So now we are moving towards the second question of today's class. Which Indian state has recently been declared a fully literate state? हाल ही में किस भारतीय राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। That means fully literate state. Option A, Kerala. Option B, Goa. Option C, Mizoram. And D, Tripura. Well, you have been given 5 seconds to answer. Excuse me. Well, the correct answer is option C, Mizoram. Right? Next, we are moving towards the third question of today's class. Under which scheme will Prime Minister Narendra Modi inaugurate 103 redeveloped railway stations? Under which scheme will Prime Minister Narendra Modi inaugurate 103 redeveloped railway stations? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किस योजना के तहत करेंगे? ऑप्शन ए स्मार्ट स्टेशन स्कीम, बी भारत निर्माण स्कीम, सी अमृत भारत स्टेशन स्कीम एंड डी रेल विकास स्कीम। स्मार्ट स्टेशन स्कीम, भारत निर्माण स्कीम, अमृत भारत स्टेशन स्कीम और रेल विकास स्कीम। वेल यू हैव बीन गिवन 5 seconds to answer. Well, the correct answer is option C, अमृत भारत स्टेशन स्कीम। चलिए हम लोग अब देख लेते हैं आज के क्लास का चौथा क्वेश्चन क्या है। When is National Anti-Terrorism Day observed every year in India? भारत में हर वर्ष आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 मई यानी 20 मई, ऑप्शन बी 21 मई, ऑप्शन सी 22 May and option D 25 May. Well, you have been given 5 seconds to answer. Well, the correct answer is option B 21 May. नेशनल एंटी टेररिज्म डे कब मनाया जाता है? तो वो है 21 मई, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है हर साल। चलिए देख लेते हैं आज का हमारे इस क्लास का फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। स्पेनिश फॉर्मर फुटबॉलर पेप रेना रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, व्हिच क्लब डिड ही प्ले फॉर? स्पेन के पूर्व फुटबॉलर पेप रेना ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की। वो किस क्लब के लिए खेले थे? ऑप्शन ए बार्सिलोना, बी मैनचेस्टर यूनाइटेड, सी लिवरपूल, डी रियल मैड्रिड। Well, you have been given 5 seconds to answer. Well, the correct answer is option C, Liverpool. Now we are moving towards the sixth question of today's class. Who has recently been elected as the president of SCBA for the fourth time for 2025-26? हाल ही में 2025-26 के लिए
चौथी बार SCBA के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए कपिल सिब्बल, बी विकास सिंह, सी प्रशांत भूषण, डी हरीश साल्वे. Well, you have been given 5 seconds to answer. Well, the correct answer is option B, विकास सिंह. राइट? चलिए हम लोग अब देख लेते हैं आज के इस क्लास का 7th क्वेश्चन. When is World Bee Day celebrated? Sorry, observed every year. When is World Bee Day observed every year? आप यूं कह लें, सेलिब्रेटेड भी कह सकते हैं. विश्व मधुमक्खी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 मई, ऑप्शन बी 21 मई, ऑप्शन सी 22 मई एंड ऑप्शन डी 25 May. Well, you have been given 5 seconds to answer. When is World Bee Day observed every year? विश्व मधुमक्खी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? Right? Well, the correct answer is option A, 20 May. Right? So now we are moving towards the 8th question of today's class. When is World Meteorology Day observed every year? विश्व मापन विज्ञान दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व मापन विज्ञान दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 मई, ऑप्शन बी 21 मई, ऑप्शन सी 20 मई एंड ऑप्शन डी 25 May. Well, you have been given 5 seconds to answer. Well, the correct answer is option C, 20 May. Right? वर्ल्ड बी डे भी मनाया जाता है 20 मई को और वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे भी मनाया जाता है 20 मई को ही. राइट? चलिए आज के इस क्लास का 9वां क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन. On which date is International Human Resources Day celebrated? अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 मई, ऑप्शन बी 22 मई, ऑप्शन सी 21 मई एंड ऑप्शन डी 20 मई. फिर से आपको इस क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे 5 सेकंड जवाब देने के लिए. राइट? चलिए. Well, the correct answer is option D. यानी 20 मई को वर्ल्ड बी डे, 20 मई को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे और उसी 20 मई को इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्सेज डे भी मनाया जाता है. राइट? चलिए आज के इस क्लास का और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यानी 10th क्वेश्चन. What initiative has the DOT launched to prevent cyber fraud? साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए दूरसंचार विभाग DOT ने कौन सी पहल शुरू की है? साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए दूरसंचार विभाग DOT ने कौन सी पहल शुरू की है? ए फाइनेंशियल इंडिकेटर, बी ई डिजिटल सेवा, सी फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर एंड डी रिस्क इंडिकेटर. So, well, you have been given 5 seconds to answer. Excuse me. Well, the correct answer is option C, Financial Fraud Risk Indicator. चलिए तो आज की क्लास में हम लोगों ने और आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस देखे. सबके 4 ऑप्शंस थे और हम लोगों ने सही जवाब दिया भी. और ये सारे क्वेश्चंस आपके RRB, NTPC, UPSC एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज्यादा उम्दा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. चलिए मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ. 25 मई 2025 का कल वीडियो आएगा. चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग एक नए क्लास में नए जोश के साथ. तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय.